children, today I am starting here chapter number 6, differential equation. What is the differential equation? Students, we know here in physics, chemistry and other sciences, we often have to build mathematical models which involves the differential equation. Okay, then what is the differential equation? Differential equation, what is mean of that? I am here giving simply definition as an equation which consists or involving independent variables, dependent variables and derivatives of dependent variables with respect to the independent variable is called the differential equation. Dependent variable means what? You know the equation, students. Here suppose x plus y is equal to 2. If we consider, it is a linear equation. It consists of two variables x and y. Okay, then here we have to say that x and y both are the dependent as well as a independent variable. Suppose I am here putting the x is equal to 1, then you will get the value of y. Therefore x is said to be as a independent variable and y is said to be as a dependent variable. Are you getting? If x is equal to 1 means I am giving the value there. Therefore it is said to be as a independent variable and you will get the value of y, that is the dependent. Depending upon the value of x, you will get the value of y. Therefore y is said to be as a dependent variable. Okay. Similarly, if we put here y is equal to -1, then you will get the value of x. Now I am giving value of y is a -1. मैंने खुद दिया है उसी को, means it is a independent variable. At that time you will get the values of x. Therefore it is said to be as a dependent variable. Means we have to say here x and y both are the dependent as well as the independent variables. Okay, are you getting? Means an equation involving independent variables, dependent variables and derivatives of dependent variable with respect to independent variable is called as a differential equation. It is a simple definition. मीन्स उसी में क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एज वेल एज डेरिवेटिव्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड एज अ डिफरेंशियल इक्वेशन. और सिंपली I am giving here definition of a differential equation as an equation which contains the derivative of a function is called a differential equation. सिर्फ उसी में डेरिवेटिव्स की एक टर्म होनी चाहिए, या तो डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए, बस इतना ही है. इट इज सेड टू बी एज अ डिफरेंशियल इक्वेशन. फॉर एग्जांपल हियर dy by dx is equal to cos x. It is said to be as a differential equation. देखो y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x दिया है, मीन्स डेरिवेटिव टर्म दिया है, एंड cos x इज अनदर टर्म. ऑन RHS साइड cos x है. ओके, अगर यहाँ इनइक्वेलिटी साइन होता है, मीन्स लेस दैन ग्रेटर दैन इस तरह से होगा तो ये इक्वेशन नहीं है. यहाँ इक्वेलिटी साइन ही होना चाहिए. ओके, means differential equation it consists only derivatives term. okay, डेरिवेटिव टर्म होनी चाहिए, डिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए. इट इज सेड टू बी एज अ डिफरेंशियल इक्वेशन. इट इज अ सिंपल डेफिनेशन. नाउ लुक हियर अनदर एग्जांपल. अभी यहाँ मैंने x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर. इट इज द इक्वेशन of a circle and it is said to be as a standard equation of a circle, but no any derivative term is there, therefore it is not said to be as a differential equation. Now second example, d2y by dx square plus dy by dx is equal to x. It is also a differential equation. So many examples are given in your book there. You have to look there which examples are there
Okay, then next term we have to define as a order of a differential equation. What is the order of a differential equation? तो आपके डिफरेंशियल इक्वेशन में जो भी हायर ऑर्डर डेरिवेटिव है इट इज सेड टू बी एज अ ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन. आपके डिफरेंशियल इक्वेशन में जो भी हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म है उसी को हम क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ अ differential equation. For example, look here, d2y by dx square plus 2dy by dx which is equal to 5. ओके, तो ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है. हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म कौन सी है? ये यहाँ भी है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म. ये आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म है बट इट इज़ अ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म. मीन्स जो भी हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म है उसी का यहाँ देख लो कितना हायर ऑर्डर डेरिवेटिव है. इट इज़ अ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव. ओके, देयरफॉर ऑर्डर इज सेड टू बी एज अ ऑर्डर इज 2. इसी का ऑर्डर कितना है? 2. तो आपके डिफरेंशियल इक्वेशन में ये देखोगे कि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म कौन सी है. मीन्स द ऑर्डर ऑफ द highest order derivative present in the equation is called the order of a differential equation. हायर ऑर्डर डेरिवेटिव की टर्म रिकॉग्नाइज करना है बस. तो वो कौन से ऑर्डर का है? दैट इज द ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन. आर यू गेटिंग? ऑर्डर इज 2. समझ में आ रहा है? देन डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन. अभी डिग्री किस तरह से फाइंड आउट होती है? डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन मीन्स व्हाट? First we have to find out order of a differential equation. Then what is the power of that term? Means higher order derivative की जो भी term है उसी का power क्या है? It is nothing but degree of a differential equation. समझ में आ रहा है? अभी यहाँ higher order derivative term कौन सी है? ये है. Therefore order is 2. लेकिन इसी का पावर कितना है? What is the power of that? There is 1. Means degree is 1. Higher order derivative term का जो भी पावर that is the index is said to be as a degree of a differential equation. तो यहाँ आपको क्वेश्चन रहता है 2 मार्क के लिए. इक्वेशन आपको दिया होगा. ओके, एंड देन फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन. ओके, तो यहाँ सिंपल इक्वेशन आपको दिया है इसीलिए आप तुरंत फाइंड आउट कर सकते हैं. सिंपल एग्जाम्पल दिया है तो आप सिंपली फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, नाउ आई एम हियर एक्सप्लेनिंग अबाउट द एग्जाम्पल्स. लुक हियर इज अ d2y by dx square plus 2dy by dx is equal to 5. It is the differential equation. What is the order of a differential equation? किस तरह से फाइंड आउट करोगे? इसी का ऑर्डर क्या है? हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म क्या है? इसी में दिए हुए इक्वेशन में आपको हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म फाइंड आउट करना है. तो ये है, ये भी तो है लेकिन हायर ऑर्डर, इसी से हायर ये है. मीन्स इट इज़ क्या बोलते हैं? हेड ऑफ द पर्सन इन अ फैमिली. ओके, ये भी तो फैमिली मेंबर है लेकिन ये क्या है? हेड ऑफ द फैमिली मेंबर है. ओके, तो पहले हम उसी को ही क्या करोगे? रिस्पेक्ट दोगे. तो इसीलिए हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म जो भी है वो फाइंड आउट करना है और वो कौन से ऑर्डर का है देख लो. तो ये हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म है लेकिन ये कौन से ऑर्डर का है? सेकंड ऑर्डर का. देयरफॉर ऑर्डर इज 2. अभी डिग्री किस तरह से फाइंड आउट करोगे? जो भी हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म है उसी का पावर या तो इंडेक्स. तो इसी का पावर कितना है? 1 है. या तो इंडेक्स कितना है? 1 है. देयरफॉर डिग्री इज 1. आर यू गेटिंग? अभी हम और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं. ये तो आपका सिंपल एग्जाम्पल था. आफ्टर दैट here suppose equation is given as a second example. I am writing here d2y by dx square whole bracket cube is equal to 1 plus
2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स ब्रैकेट स्क्वायर। आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है। फाइंड आउट द ऑर्डर एंड डिग्री। इसी के आपको ऑर्डर और डिग्री फाइंड आउट करना है। ओके, तो क्या करोगे, पहले हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म फाइंड आउट करोगे। यहाँ डेरिवेटिव के टर्म कितने, इट इज़ वन ऑफ देम, इट इज़ अनदर। तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म कौन सी है, ये है। तो उसी का यहाँ डिग्री कितना, सॉरी, इसी का कौन से ऑर्डर का डेरिवेटिव टर्म है, सेकंड ऑर्डर का। देयरफॉर ऑर्डर इज 2। और हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर मीन्स दिस, इट इज़ नथिंग बट डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसी को हम कंसिडर नहीं करेंगे। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव की टर्म हमको पिकअप करना है। ओके, समझ में आ रहा है। और उसी का पावर जो भी है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म का, इट इज़ नथिंग बट डिग्री। ओके, तो आपको ये थोड़े से दोनों डेफिनेशन मेमोराइज करना है। तो ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया होगा तो उसकी ऑर्डर और डिग्री किस तरह से फाइंड आउट होती है। तो यहाँ तो सिंपल एग्जाम्पल दिया था। सपोज एग्जाम्पल इज गिवन इन दिस वे। अगर आपको इस तरह से एग्जाम्पल दिया है तो आप किस तरह से फाइंड आउट करोगे। नाउ आई एम गिविंग हियर अनदर एग्जाम्पल। लुक हियर, example number 3. Here 3 into dy by dx, okay, which is equal to 5x plus 6 upon 4 into dy by dx। आपको इस तरह से दिया है। Then how to find the order and degree of that। तो इसी के ऑर्डर और डिग्री किस तरह से फाइंड आउट करोगे। हियर सॉल्यूशन। तो यहाँ डी वाई बाई डी एक्स की टर्म डिनोमिनेटर में है, आर एच एस साइड में, तो ये शिफ्ट कर देंगे, एल एच एस में लेंगे। तो ये शिफ्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू 4 इंटू डी वाई बाई डी एक्स विच इज़ इक्वल टू 5x प्लस 6। ओके, तो ये इस तरह से आ जाएगा। नाउ विच इज़ इक्वल टू, देयरफॉर 3 इंटू 4 ये क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इसी का ब्रैकेट का स्क्वायर हो जाएगा। देखो डी वाई बाई डी एक्स को मैंने x सपोज किया, x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ एक्स स्क्वायर, x मीन्स डी वाई बाई डी एक्स उसी का स्क्वायर इज इक्वल टू 5x प्लस 6। ओके, देन अभी आप ये टर्म इधर शिफ्ट कर सकते हो या तो एज इट इज रख सकते हो। इट इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, अभी इसी के आपको ऑर्डर फाइंड आउट करना है। व्हाट इज द ऑर्डर एंड व्हाट इज द डिग्री। देखो एक ही टर्म है, डेरिवेटिव टर्म एक ही है। अभी इसी का ऑर्डर क्या है, सिंपली यहाँ डी वाई बाई डी एक्स है, मीन्स इट इज़ अ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, देयरफॉर ऑर्डर इज अ 1। अभी इसका पावर कितना है यहाँ 2, एंड दिस 2 इज नथिंग बट डिग्री। ओके, देयरफॉर ऑर्डर ऑफ अ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ 1 एंड डिग्री इज अ 2। आर यू गेटिंग? यस, तो आप इस तरह से फाइंड आउट करोगे। Now next as a look here, suppose examples are given as in this way. Here d2y by dx square whole bracket square plus dy by dx, look here, d2y by dx square whole bracket square plus dy by dx, okay, whole bracket square is equal to e raised to x। ओके, आपको इस तरह से दिया है। देन
व्हाट इज द ऑर्डर एंड व्हाट इज द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखो यहाँ ऑर्डर एंड डिग्री, आई एम राइटिंग हेयर सॉल्यूशन। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म कौन सी है ये देख लो। यहाँ ये भी एक डेरिवेटिव टर्म है एंड इट इज ऑल्सो डेरिवेटिव टर्म, बट विच इज द हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म, या तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म कौन सी है, दिस वन, ये है। और ये कौन से ऑर्डर का है, सेकंड ऑर्डर का, देयरफॉर ऑर्डर इज 2। और इसी का ही पावर देखना है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म का जो पावर है इट इज नथिंग बट डिग्री। तो कितना है 2, देयरफॉर डिग्री इज 2। समझ में आ रहा है। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल आई एम राइटिंग हेयर एग्जाम्पल नंबर 5 हियर। सपोज d2y by dx square, here bracket raised to 3/2 which is equal to square root of 1 plus 1 upon dy by dx इसी का स्क्वायर आपको इस तरह से दिया है। देन हाउ टू सॉल्व दिस एग्जाम्पल। तो देखो जब भी डिग्री और ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की फाइंड आउट करना है, फर्स्ट रूल इज दैट, अभी पहले हमारे एग्जाम्पल सिंपल थे, ओके, लेकिन अभी यहाँ से आगे जो भी एग्जाम्पल है थोड़े से डिफिकल्ट है और आपको एग्जाम में ये इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। देन फर्स्ट रूल इज दैट, यहाँ जो भी रेडिकल साइन है, रेडिकल साइन मीन्स रूट, क्यूब रूट, ओके, इस तरह से होगा। तो पहले वी हैव टू फ्री फ्रॉम द रेडिकल साइन, डिफरेंशियल इक्वेशन जो भी है यू हैव टू फ्री फ्रॉम द रेडिकल साइन, मीन्स रेडिकल साइन हटाना है, ओके। रेडिकल साइन हटाना है तो किस तरह से करना है, यहाँ 3/2 है, यहाँ 1/2 है, ये स्क्वायर रूट मीन्स क्या, पावर इज 1/2। तो दोनों साइड का हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड का स्क्वायर कर दो। देयरफॉर तो ये क्या हो जाएगा, d2y by dx स्क्वायर रेस टू 3/2 और इसी का स्क्वायर कर रहे हैं हम, ओके, विच इज इक्वल टू, ये रूट में है मीन्स किस तरह से है, ये रूट में है मीन्स किस तरह से है, 1 plus 1 upon dy by dx इसी का स्क्वायर, और ये क्या है, स्क्वायर रूट में है मीन्स 1/2 है और मुझे ये हटाना है, तो दोनों साइड का मैं क्या कर रही है, स्क्वायर कर रही है। तो LHS साइड में क्या हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, मीन्स d2y by dx स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, ब्रैकेट क्यू, विच इज इक्वल टू, यहाँ भी ये देखो ये रूट है और ये स्क्वायर वो हट जाएगा, मीन्स क्या रहेगा, 1 plus 1 upon dy by dx, ये स्क्वायर हो जाएगा, ओके। समझ में आ रहा है, आर यू गेटिंग, यस। फिर से इसी को सिंप्लीफाई कर दो, फिर से हम इसी को सिंप्लीफाई कर देंगे तो और क्या आ जाएगा, ये नाउ लुक हियर, इसी को फिर से सिंप्लीफाई करना है, वी हैव टू डू द सिंप्लीफिकेशन अगेन। तो ये d2y by dx स्क्वायर ब्रैकेट क्यू विच इज इक्वल टू, देखो RHS साइड में इसी को dy by dx होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 1 अपॉन dy by dx, देखो यहाँ मैं लिख रही है dy by dx इसी का स्क्वायर, ओके। ये टर्म इधर शिफ्ट हो जाएगी, मीन्स d2y by dx स्क्वायर, ये ब्रैकेट क्यूब इनटू dy by dx इसी का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 plus dy by dx इसी का स्क्वायर, ओके। अभी हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म कौन सी है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म कौन सी है,
देखो ये d2y/dx² है, उसी का क्यूब है, और ये dy/dx इसी का स्क्वायर है, लेकिन यहाँ प्रोडक्ट है। ओके, तो प्रोडक्ट है तो ये डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव उसी का स्क्वायर है। हम प्रोडक्ट भी कर देंगे तो ये तो चेंज नहीं होगा, वो एज इट इज़ रहेगा। ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म है। तो इसी में हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म कौन सी है? ये है। तो इसी का ऑर्डर कितना है? 2 है, और डिग्री कितना है? 3। इसी का हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म का जो भी पावर है दैट इज द डिग्री। मीन्स वी हैव टू राइट हियर ऑर्डर इज 2 and degree is 3। डिग्री कितनी है? 3। ओके, नाउ आई एम टेकिंग वन मोर एग्जाम्पल। तो देखो, जब भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन आपको रेडिकल साइन में दिया है, यू हैव टू फ्री फ्रॉम द रेडिकल साइन। फर्स्ट रूल क्या है? फ्री फ्रॉम द रेडिकल साइन करना है। मीन्स स्क्वायर रूट, क्यूब रूट जो भी दिया है वो हटाना है। नाउ आफ्टर दैट एग्जाम्पल नंबर 6। नाउ लुक हियर, अभी आपको एग्जाम्पल इस तरह से दिया है, e⁻dy/dx प्लस dy/dx इज इक्वल टू x। अगर देख लो यहाँ e⁻dy/dx दिया है, तो ये जो है हमारा, ये पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होता है। पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होता है। वाई? यहाँ एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और उसी का पावर dy/dx है। देयरफॉर it is not a polynomial differential equation। पॉलिनोमियल के इसी में नहीं दिया है। e⁻ समथिंग यहाँ dy/dx दिया है। dy/dx अगर e⁻ दिया है तो वो पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। ओके, तो यहाँ इसको हम किस तरह से, इसी की ऑर्डर और डिग्री किस तरह से फाइंड आउट करना है। तो यहाँ ये डेरिवेटिव की टर्म नहीं कंसिडर करना है, विच इज़ द डेरिवेटिव टर्म ये। तो इसी का वो कौन से ऑर्डर का है? फर्स्ट ऑर्डर। देयरफॉर ऑर्डर इज 1। ऑर्डर इज 1। यहाँ ऑर्डर क्या आ जाएगी? 1। एंड डिग्री कितनी आ जाएगी? यहाँ लिखेंगे कैनॉट बी डिफाइंड। इसी की डिग्री हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। कैनॉट बी डिफाइंड। ओके, तो इस तरह से लिखना है। तो इसी को रीजन क्या लिखोगे? सिंस गिवन इक्वेशन cannot be expressed as polynomial differential equation। देखो e⁻dy/dx रहेगा तो ये लिखना है डिग्री कैनॉट बी डिफाइंड। या तो कौन सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहेगा और उस तरह से लिखा है तो हम उसी का डिग्री फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। ओके, उसी का डिग्री कैनॉट बी डिफाइंड। Then example number 7. Now I am writing here another example as dy/dx plus 3xy upon here dy/dx, which is equal to cos x into dy/dx। ये नेक्स्ट एग्जाम्पल है। ओके, देन हाउ टू फाइंड। अभी देखो यहाँ डिनोमिनेटर में dy/dx है तो उसी को हटाना है।
तो ये dy बाई डी एक्स इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये dy बाई डी एक्स इंटू dy बाई डी एक्स प्लस 3xy इज इक्वल टू कॉस x इंटू dy बाई डी एक्स इंटू dy बाई डी एक्स. ओके, नाउ सॉरी, यहाँ एग्जाम्पल में ये dy बाई डी एक्स नहीं है, सिर्फ cos x है. ओके, यहाँ एग्जाम्पल में dy बाई डी एक्स नहीं है, ओनली cos x है RHS साइड में. तो ये dy बाई डी एक्स डिनोमिनेटर का हटाना है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, LCM फाइंड आउट कर दो और उस तरह से करना है. तो ये dy बाई डी एक्स इधर भी शिफ्ट हो जाएगा. ओके, तो dy बाई डी एक्स इंटू dy बाई डी एक्स मीन्स क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 3xy इंटू ये cos x इंटू dy बाई डी एक्स. अभी यहाँ dy बाई डी एक्स के दो टर्म है, इट इज़ अ वन ऑफ द टर्म एंड इट इज़ अ अनदर टर्म. ओके, तो यहाँ देखो कौन सा टर्म हम कंसिडर कर देंगे. यहाँ भी है dy बाई डी एक्स का और यहाँ भी है, देन विच टर्म वी हैव टू डिसाइड. तो किस तरह से लिखेंगे, we have to consider this one. Here order is 1. इसे कौन से ऑर्डर का है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है. और डिग्री कौन सी है, डिग्री इज इसी का पावर, इट इज़ नथिंग बट डिग्री. तो डिग्री क्या आ जाएगी, डिग्री इज 2. वाई वी हैव टू नॉट कंसिडर दिस वन, ये क्यों नहीं हम कंसिडर कर रहे हैं, ये cos x इंटू dy बाई डी एक्स है, इसीलिए हम नहीं कंसिडर कर रहे. ओके, तो यही हम डिसाइड कर रहे हैं. नेक्स्ट, सपोज एग्जाम्पल नंबर 8, इट इज गिवन एज d4y बाय dx raised to 4 which is equal to 1 plus dy by dx bracket raised to 2 and ये स्क्वायर ब्रैकेट का फिर से पावर 3 है. ओके, नाउ व्हाट इज द ऑर्डर एंड व्हाट इज द डिग्री. ऑर्डर एंड डिग्री, मैंने आपको क्या कंसेप्ट बताया था. यहाँ देखो रेडिकल साइन नहीं है. ओके, रेडिकल साइन नहीं है तो रेडिकल साइन रिमूव करने का क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता है, सिंपली दिया है. तो यहाँ हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म कौन सी है, पहले देखेंगे डेरिवेटिव के टर्म कौन से, ये एक है और ये एक. अभी इसी का क्यूब कर दो, कुछ भी कर दो, लेकिन ये तो कुछ चेंज नहीं होगा. ओके, होकर क्या हो जाएगा देख लो, इसी का क्यूब कर देंगे, a प्लस बी उसी का क्यूब कर दो, क्या आ जाएगा, ये तो चेंज नहीं होगा ऑर्डर. तो यहाँ देख लो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म ये है, और कौन से ऑर्डर का है, फोर्थ ऑर्डर, मीन्स ऑर्डर इज 4. अभी इसी का पावर क्या है, 1 है, देयरफॉर डिग्री इज 1. आर यू गेटिंग, समझ में आ गया. तो इस तरह से फाइंड आउट कर देंगे. अभी ऑन द बेसिस ऑफ दैट देयर इज वन ऑफ द एक्सरसाइज दैट इज 6.1. तो देखो बच्चों, इसी पर एक क्वेश्चन आ ही जाता है, 2 मार्क के लिए क्वेश्चन रहता है. मेनली आई थिंक दैट फर्स्ट सेक्शन में ही रहता है, व्हाट इज़ द डिग्री एंड व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन. ऑब्जेक्टिव टाइप में हो सकता है या तो सेक्शन बी में हो सकता है, 2 मार्क का क्वेश्चन है. ओके, देन आई एम स्टार्टिंग हियर एक्सरसाइज 6.1. 6.1 हम स्टार्ट कर रहे हैं. तो देर आर 10 एग्जाम्पल्स, 10 एग्जाम्पल्स है, जल्दी से हो जाएगा. डिटरमाइन द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन.
तो फर्स्ट क्वेश्चन है ये, ओके। तो डिटरमाइन द डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ अ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो मैं यहाँ एग्जाम्पल ही डायरेक्टली लिखेगी। फर्स्ट एग्जाम्पल, d2y बाय dx स्क्वायर प्लस x इंटू dy बाय dx प्लस y विच इज इक्वल टू 2 sin x। सॉल्यूशन हियर डायरेक्टली। अभी यहाँ देखो सिंपल एग्जाम्पल दिया है, रेडिकल साइन नहीं है, कुछ नहीं है, ओके। अभी डेरिवेटिव के टर्म्स कितने हैं? 2 ही है, ये एक है, ये एक है। तो डायरेक्टली हम लिखेंगे ऑर्डर एंड डिग्री। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म कौन सी है? ये। और कौन से ऑर्डर का है? सेकंड ऑर्डर का। देयरफॉर ऑर्डर इज 2 और इसका पावर कितना है? 1 है, मीन्स डिग्री इज 1। डिग्री कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। सिंपल एग्जाम्पल है। नाउ सेकंड एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 2। अभी यहाँ रेडिकल साइन में दिया है, इट इज गिवन एज क्यूब रूट ऑफ 1 प्लस dy बाय dx और ये dy बाय dx का स्क्वायर दिया है, ओके, विच इज इक्वल टू d2y बाय dx स्क्वायर। अभी यहाँ रेडिकल साइन दिया है, तो रेडिकल साइन से डिफरेंशियल इक्वेशन फ्री करना है। क्यूब रूट दिया है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? कोई बोलेगा? समझ में आता है क्या? देख लो, देखो इस तरह से होता है तो हम क्या लिखते हैं? स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। यहाँ कुछ नहीं है, मीन्स 2 होता है, तो ये x रेज टू 1/2। अभी यहाँ इस तरह से दिया है, मीन्स ये क्या है? x रेज टू 1/3। तो ये आपका x है और ये रूट के अंदर 3, मीन्स ये किस तरह से है? सॉल्यूशन रेडिकल साइन से हमको फ्री करना है। फर्स्ट वी हैव टू रिमूव द रेडिकल साइन, ओके। तो क्या करना है? ये हम इस तरह से लिखेंगे 1 प्लस dy बाय dx, इसी का स्क्वायर, और ब्रैकेट रेस टू क्या लिखेंगे? 1/3 विच इज इक्वल टू d2y बाय dx स्क्वायर। अभी ये 1/3 है, तो दोनों साइड का हम क्या करेंगे? क्यूब कर देंगे। ये 3 हटाना है डिनोमिनेटर का यहाँ, तो क्या लिखेंगे? क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, या तो टेक क्यूब ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड का क्यूब कर दो। देयरफॉर तो दोनों साइड का क्यूब किया तो ये क्यूब रूट और क्यूब हट जाएगा, मीन्स 1 प्लस dy बाय dx इसी का स्क्वायर विच इज इक्वल टू d2y बाय dx स्क्वायर इसी का क्यूब। इधर ये 1/3 हट गया क्यूब करने के बाद। नाउ अभी ये रेडिकल फ्री हो गया। यू हैव टू राइट ऑर्डर एंड डिग्री। नाउ लुक हियर, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म कौन सी है? यहाँ 2 टर्म है डेरिवेटिव के, इट इज़ वन ऑफ देम एंड इट इज़ अनदर। तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म मैंने आपको क्या बताया था? जो भी बड़ा है वो देखना है। चेयरपर्सन इन द फैमिली मीन्स जो बड़ा है वो, तो ये d2y बाई dx स्क्वायर ये बड़ा है इससे, तो ये कंसिडर करेंगे डेरिवेटिव की टर्म। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म ये कंसिडर करना है, ओके। और ये कौन से ऑर्डर का है? सेकंड, तो ऑर्डर कितनी आ जाएगी? 2, और इसी का पावर मीन्स ये क्या है? डिग्री। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म का जो भी पावर रहता है इट इज़ द डिग्री। तो कितनी है? 3। आर यू गेटिंग? यस। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 3। dy by dx which is equal to 2 sin x plus 3
अपॉन dy बाय dx. ओके, अभी यहाँ देखो RHS साइड में डिनोमिनेटर में dy बाय dx है, तो इधर शिफ्ट कर दो, पहले सिंप्लीफाई कर देंगे. ओके, तो ये क्या हो जाएगा dy बाय dx इंटू dy बाय dx विच इज इक्वल टू 2 sin x प्लस 3. सिंप्लीफाई करना है, मीन्स ये क्या हो जाएगा dy बाय dx होल ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 2 sin x प्लस 3. अभी dy बाय dx की टर्म एक ही है, तो उसी का ही ऑर्डर कंसिडर कर देंगे. तो ऑर्डर कौन से ऑर्डर का है, देखो सिंपली है dy बाय dx मीन्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, देयरफॉर ऑर्डर इज 1. और डिग्री क्या आ जाएगी, ये कौन से ऑर्डर का है, फर्स्ट ऑर्डर का है, तो ऑर्डर कितनी आ जाएगी 1. एक ही टर्म है dy बाय dx की, तो वही कंसिडर करेंगे. तो ऑर्डर क्या आ जाएगी 1, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो ये ऑर्डर इज 1 एंड डिग्री क्या है, इसी का पावर कितना है 2, देयरफॉर डिग्री इज 2. ओके,